हेलो एवरीवन, स्वागत है सीए फाइनल के हमारे स्टूडेंट्स का जो प्रिपेयर कर रहे हैं मई 2022 के लिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिलेबस में एबीसी एनालिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड अमेंडमेंट्स फॉर लास्ट डे रिवीजन and last day strategies what we are going to discuss. This video is going to be all about FR audit. I'm sharing a separate video. In that I'll be sharing all these things plus some additional important summary power packed charts which will help you to revise all the provisions in the chapter of across all the chapters in the subject of audit by just referring to few pages. चलिए, तो एफआर में सबसे पहले हम एबीसी एनालिसिस की बात करते हैं. दिस टाइम व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डन इट अ लिटिल डिफरेंटली. मोर और लेस इफ यू सी, एफआर का पेपर काफी प्रिडिक्टेबल हो गया है विद सर्टेन फ्यू चैप्टर्स कंप्राइजिंग ऑलमोस्ट और covering almost 65 to 75 marks of your paper, which is roughly around 120-25 marks. And no marks for guessing that these chapters are financial instruments, business combination, consolidation, share-based payment, Ind AS 115, 116. दिसंबर 21 का ये एग्जाम वेटेज मोर और लेस अक्रॉस पिछले 4 अटेम्प्ट में फॉलो हो रहा है. इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है और नहीं है, दिस इज नो बिग न्यूज. So what I have done is, we for a fact know that these are A category items. I have done one particular thing for this exam is I have not given my ABC classification. Rather, I have given a ABC classification based on past 4 new syllabus exams. यानी पिछले 4 न्यू सिलेबस के एग्जाम के अंतर्गत कौन से पर्टिकुलर चैप्टर में क्वेश्चन 3 या उससे ज्यादा बार पूछे गए हैं वो A, उससे कम बार पूछे गए हैं बी, और एक बार भी पिछले 4 अटेम्प्ट में नहीं पूछे गए हैं वो सी. इसका मतलब यह हुआ कि now it is up to you to apply your Jyotish Vidya, your astrology and decide what is going to be important, because A, if the paper pattern remains similar to what it has been in the previous exams, what I have given here as ABC based on the past exam should hold true. But if the institute decides to change the pattern, I don't know whether it will or it will not, nobody can predict that. Then in that case, even those category items which are C classified could be recategorized as B or A. Quickly going through chapter number 1, framework for preparation of financial statements. Has been a C category item क्योंकि कभी इस पे सवाल पूछे नहीं गए, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम के लिए I'll suggest conceptual framework पे, क्योंकि अमेंडमेंट हुए हैं, you can expect a 4 mark question on this. तो सर क्या आप इसे ए कैटेगरी क्लासिफाई करना चाहोगे? मेरे हिसाब से इस बार मैं इसे क्लासिफाई करूंगा और मैं सजेस्ट करूंगा कि इसका एक वीडियो यूट्यूब पे मैंने शेयर किया है विच कवर्स दिस कॉम्प्रिहेंसिवली. एक बार सुन डाला तो लाइफ का पता नहीं, लेकिन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क झिंगालाला which is supported by lovely notes which will cover up each and every aspect of that particular detailed big lengthy theory chapter, but at least you will be in that position to answer question in your exam. Then Ind AS 1 preparation of financial statement plus your appendix schedule 3 plus analysis of financial statement chapter, which is nothing but assorted questions from various Ind AS, mostly questions from schedule 3. ये सब मिला के has been A category item and I also classified to be an A category because you can expect a compulsory question coming from this particular chapter. शेड्यूल 3 बेस्ड क्वेश्चन या तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के आएंगे, या एक छोटा सा क्वेश्चन प्राइमरली प्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन में भी डिस्क्लोजर से रिलेटेड आ सकता है. ऐसी जो भी मेरी कमेंट्री है वो मैंने यहाँ पे साइड में आपके साथ शेयर भी किया. इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पिछले 4 में से 3 अटेम्प्ट प्लस में पूछा गया है. इट इज एन ए कैटेगरी आइटम क्योंकि अभी इतनी बार पूछा जा चुका है, मुझे लगता है इट शुड बी बी नाउ. Statement of cash flow is again 3 out of 4 attempts has been asked. I feel it may not so be asked, hence I am classifying it as B from my perspective. But then this is if the institute decides to do some fumbling in the pattern the way they've been doing it in the past. Otherwise, you can see. No doubts, Ind AS 115 or Ind AS 116, which is revenue from contract with customers and leases, will always be a category item because you will always find questions out of this unless the paper pattern gets changed.
Ind AS 116, in fact, 115 and 116 are very lengthy standard and do deserve at least one question, which could range from 5 to 8 marks from each of these standard. कल ही मैं Ind AS 115 Ind AS certification course जो members का होता है जिसमें कुछ 200 odd members attend कर रहे थे, I was just taking that particular session there. Ind AS 8 अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, पिछले 4 अटेम्प्ट से एक बार भी इसके ऊपर कोई फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. तो मैंने ऐसी कुछ कैटेगरी आइटम्स को सी क्लासिफाई किया जिसके ऊपर पिछले 4 अटेम्प्ट में एक बार भी सवाल नहीं पूछा गया. एंड डू वी एक्सपेक्ट कि अब आ सकता है? नोबडी नोस. Ind AS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट अगेन इज अ सी कैटेगरी थिंग. फेयर वैल्यू मेजरमेंट के ऊपर इंस्टीट्यूट ने हालांकि बहुत ऑफनली नहीं बट रेयरली सवाल पूछे हैं, तो आई हैव एटलीस्ट पुट दैट एज बी. गवर्नमेंट ग्रांट्स ओल्ड कोर्स में बड़ा पसंद था इंस्टीट्यूट को, बट न्यू कोर्स में एज सच वी वर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन आना चाहिए, बट अगेन दिस इज वन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी जिसपे यू वोंट फाइंड क्वेश्चंस एटलीस्ट इन द पास्ट 4 अटेम्प्ट्स. शेयर बेस्ड पेमेंट, नो मार्क्स फॉर गेसिंग, ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी लेंथी एंड डिजर्व्स वन पर्टिकुलर क्वेश्चन. फर्स्ट टाइम अडॉप्शन एक ऐसा चैप्टर है जहां पे एमटीपी में इसका काफी बोलबाला लेता है. इस बार की भी May 22 की एमटीपी 1 में काफी क्वेश्चंस Ind AS 101 के ऊपर बेस्ड थे. क्या एग्जाम में कभी भी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन 101 पे आया? नहीं, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन जरूर आए जिसमें 101 के कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, एज इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कैसे अकाउंटिंग होगा ऑन ट्रांजिशन या डीम कॉस्ट एग्जाम्पशन पीपी में कैसे यूज किया जाएगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज बी रहा है. हालांकि एमटीपी में अगर आप देखोगे तो ये A+ कैटेगरी है. Then inventory is another B category item, though one of the very simple, direct, basic standards, but institute does loves to ask questions from standard like inventories, PP sometimes. So PP also in that sense is B category. Borrowing costs surprisingly, and I would say this time I do expect a question on this. इसके ऊपर सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं पिछले 4 अटेम्प्ट से, बिकॉज ये अपने आप में क्या इतना बेसिक स्टैंडर्ड है, वेरी मच एएस बेस्ड स्टैंडर्ड. एएस और इंड AS में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, शायद इस कारण से नहीं पूछा गया. इम्पेयरमेंट ऑफ असेट इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, बहुत बार पूछते हैं अमंग्स द रेसिडुअरी कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड्स, बट इतनी बार भी नहीं कि 3 out of 4 है, hence not categorized as A. But I would definitely classify this as one of the most important standards to go through. Hence for me this is going to be A. इंटैंजिबल असेट्स मॉडरेट इंपॉर्टेंस लेवल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑल्सो इसे सी क्लासिफाई मत करना, सवाल पूछे गए इसके ऊपर. नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये एक ऐसा Ind AS है जिसके ऊपर आप एमटीपी में और आरटीपी में भी देखोगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट न जाने क्यों इंस्टीट्यूट इस पे सवाल एग्जाम में डायरेक्ट पूरे इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं पिछले पास्ट कुछ पेपर्स में, इसलिए सी है. एग्रीकल्चर पे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसे सी कैटेगरी राइट ऑफ मत कर देना, डेफिनेटली ये नहीं है, छोटा सा स्टैंडर्ड है तो बी क्लासिफाई कर दें. एम्प्लॉय बेनिफिट जो आइडियली एक कैटेगरी स्टैंडर्ड होना चाहिए था, आई ऑलवेज फील दिस इज वन स्टैंडर्ड व्हिच डिजर्व्स अ क्वेश्चन, हैज नॉट बीन सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. Similarly, AS 12 income taxes has not been so frequently asked. So these are B category standards. Do I expect this time in AS 12 पे कोई बड़ा क्वेश्चन? No. Provision, contingent liability, contingent assets, very surprisingly पिछले 4 अटेम्प्ट में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है. But once again, this is a B category. So yeah, there is quite a new, revelation which might be happening if you're not been closely monitoring the past 4 exams. Obviously, you should not be because आपके लिए एक exam काफी होगी. But since we're doing that, I have got this kind of analysis, and I think ये आपको ज़्यादा suitable, fruitful observe होगा. 21, one of the typical standards, but not very frequently asked, so B category. रिलेटेड पार्टी हैज बीन अ सी कैटेगरी. ये एएस के ज़माने में ओल्ड कोर्स में भी AS 18 बहुत ज़्यादा नहीं पूछते थे, न्यू कोर्स में भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछते. आई एम नॉट सेइंग कि कभी भी 4 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आया, बट आई एम सेइंग नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली, इट्स लाइक 1 in 4 attempts. अर्निंग पर शेयर बी कैटेगरी, नॉट दैट हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, पर ये कंपलसरी में भी आ सकता है इसका, तो आप ध्यान से करें इसको. सरप्राइजिंगली 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट इज एन ए कैटेगरी स्टैंडर्ड बिकॉज 4 में से 3 अटेम्प्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए. दिस इज नॉट वन ऑफ दोज स्टैंडर्ड जो आप अज्यूम करोगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देन स्टिल. तो आपको ये एनालिसिस समझ में आ रहा होगा. नॉर्मली क्या होता है, ए कैटेगरी मतलब सिंपल है कि भैया आप 115, 116 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, मे बी उसमें आप एम्प्लॉय बेनिफिट, शेयर बेस्ड पेमेंट ऐड कर दीजिए. ये शेयर बेस्ड पेमेंट्स एडिशनली उसमें और शेड्यूल 3 ऐड कर दें, तो ये सब आपका 65 मार्क्स कवर कर लेता है. इनफैक्ट कुछ केसेस में 75 भी.
बट देन द प्रॉब्लम इज 75 की तैयारी थोड़ी ना करना है, 125 की करना है, तो मुझे एटलीस्ट ऐसा एनालिसिस चाहिए जिससे मैं 100 पार की श्योर शॉट तैयारी कर सकूं. तो इसके लिए मैंने सोचा कि आई दिस टाइम डू दिस काइंड ऑफ एन एबीसी एनालिसिस. आई होप दिस वुड बी काइंड ऑफ जस्टिफाइड. Financial instruments, business combination, consolidation, a category. Analysis of financial statement is a subset of other standards, so nothing to be studied separately. और हम ऐसे भी क्लास में इसके सारे क्वेश्चंस इंडिविजुअल सब चैप्टर्स में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में देयर हैव बीन सम अमेंडमेंट्स और इसका रिवाइज ड्रोन चार्ट आपके साथ में शेयर कर रहा हूं. आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ले लीजिएगा, डेफिनेटली उसको डाउनलोड कर लेना. सिर्फ 2 पेज का ड्रोन चार्ट है जिसमें बड़ा सा थ्योरी चैप्टर का हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर है. ध्यान रखना, एग्जाम में जब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के पास में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कॉमन सेंस से उसके आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं. क्या पब्लिक सेक्टर एंटिटी के लिए इसका रेलेवेंस होगा या नहीं होगा. अब दे विल बी आस्किंग यू वेरी पर्टिकुलर, वेरी प्रिसाइसली, इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स. कैन इट हैव नेगेटिव कमेंट्स और नॉट, ये पूछे जा चुके हैं. नई चीजें और आ सकती है. और इसमें मेजर रिवीजन हुआ था बिकॉज इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिवीजन हुआ था, एंड इंडिया में भी किया गया और ये आपके कोर्स में एप्लीकेबल किया गया. आई एम स्ट्रांगली सजेस्टिंग आप इसको देखिएगा. आई वुड क्लासिफाई दिस एज ए फॉर यू. जस्ट रेफर द ड्रोन चार्ट्स फॉर इट. दिस इज एनालिसिस इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, सॉरी, नॉट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. And then corporate social responsibility got some amendments in December 21 itself, so you can follow that. This is basically more or less your ABC classification. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक, तो एक सुपर 100 क्वेश्चन बैंक हमने निकाली है जिसका वीडियो भी आपका ऑलरेडी मेरा शेयर्ड है. मैं उसका डिस्क्रिप्शन या यहाँ पे आपको लिंक देता हूँ. इसमें टॉप 100 क्वेश्चंस जिसको आपने कर लिए तो आप यूँ समझ लीजिए वेराइटी ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम्स, पर्टिकुलरली द डिफिकल्ट वंस वुड गेट कवर्ड. पिछले एग्जाम में ऑलमोस्ट 60+ मार्क्स की कवरेज जो सिर्फ 100 क्वेश्चन के किताब से हुई थी, सुपर 100 से. पर आप चाहते हो कि नहीं मेरी कवरेज 120+ हो जाए, तो लास्ट टाइम हमने एफआर पावर के लिए क्वेश्चन बैंक निकाली थी सुपर 400, जिसमें 400 चुनिंदा क्वेश्चंस थे. और उन 400 चुनिंदा क्वेश्चंस में से 120 मार्क का पेपर पूछा गया आउट ऑफ 125 मार्क्स ऑफ योर पेपर, यानी 120% ऑफ योर पेपर वाज कवर्ड आउट ऑफ दैट. आई एम गोइंग टू शेयर दैट डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक देख लीजिए. I have updated that from December 21 attempt to the May 22 attempt by incorporating new study material 2022 questions. एंड पिछली एग्जाम में कोई रेलेवेंट क्वेश्चन अगर लगाए तो उसका एक आध, बहुत ज्यादा नहीं, 9-10 क्वेश्चंस का एडिशन हुआ है. पिछली किसी ने कर रखी है तो बस वो आखिरी में इंडेक्स में दिया हुआ है. व्हाट हैज बीन एडेड वो लास्ट के 2 टॉपिक्स एडिशनली देख ले. प्लस उसमें वी आल्सो शेयर्ड द पास्ट, इनफैक्ट द रीसेंट एग्जाम पेपर एंड ऑल. इफ यू वांट टू रेफर यू कैन रेफर दैट एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में अगर क्विकली मैं यहीं पे आपको रिवाइज करवा दूं तो अमेंडमेंट्स कहाँ पर हुए हैं. नंबर 1 इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग अमेंड हुआ है. नंबर 2 कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अमेंड हुआ है. नंबर 3 इंडेस अमेंडमेंट रूल्स 2021 एप्लीकेबल है आपके May 22 एग्जाम्स में, जिसमें मेनली आपके लिए बड़ा अमेंडमेंट है कोविड रिलेटेड. जो कंसेशन दिया गया है उसमें पहले था कंसेशन जून 21 तक का है, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट मिलेगा, वो डेट जून 22 होगी. इसके अलावा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के कारण कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स आए, कोई खास काम के नहीं है आपके. इसके अलावा एक इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क रिफॉर्म इंटरनेशनली हुआ है जिसके कारण कुछ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इंडेस के रूल्स में हुए हैं, बट स्टडी मटेरियल में भी उसे इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, तो यू डोंट रियली हैव टू गेट इनटू दैट टू मच. These are principally the important changes, so I would strongly suggest कि इन changes में आपके लिए जो सबसे ज़्यादा critical change है वो integrated reporting और conceptual framework का है. Otherwise you can refer the amendment video wherein we have shared what all changes have happened. Links again given here. That if in case you have not watched, you can refer to get a detailed analysis of what all has got amended from December 21 to May 22. यहाँ पे नोट्स में आई एम शेयरिंग बेसिकली कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नोट्स विथ यू इन शॉर्ट समरी फॉर्म एज वेल एज योर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और आपकी लास्ट डे स्ट्रैटेजी. Pretty much the strategy for FR remains the same. So I would say this is last 5 days strategy because you will be studying FR for the last 5 days hopefully. सबसे पहला सवाल, what should be my sequence? ABC एनालिसिस मैंने आपको दिया है, इससे आपको समझ में आ गया 4 अटेम्प्ट में क्या नहीं पूछा है और क्या चैप्टर वाइज पूछा गया. इसके बेसिस पे अब आप लास्ट वीक में क्या करो. सीक्वेंस अगर आप श्योर हो क्या फॉलो करना है उसे फॉलो करो, मेरी बात मत सुनो. लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो तो मैं सजेस्ट करूंगा शेड्यूल 3 और इंडेस 1 से शुरू करो ताकि बेस बने आपका. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट 115-16. क्यों? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लेंदी, सबसे टिपिकल स्टैंडर्ड है. इनको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल प्लस आपका टेंशन लेवल दोनों अपने आप में एक्सट्रीम पॉजिटिव साइड में होंगे, फेवरेबल साइड में होंगे.
Hence, you will then not really be too much panicked in case if you are left with less amount of time. There is a suggested sequence which I have given from my side in case if you want to follow that. Otherwise, you can simply follow your pre-decided sequence. The basic thing is do not do anything new as such now except if it is very very nominal or marginal like an integrated reporting का छोटा सा कुछ या conceptual framework देखना है. I would strongly suggest उतना करें. उसके अलावा कुछ नया ना करें. वो भी लास्ट 2 दिनों में नहीं, लास्ट 5 डेज में आप प्लान कर रहे हैं तो. कैसे रिवाइज करना है? जिस भी कॉपी से आपने पढ़ा है वही प्लस जो भी बुक आपने रेफर करी है वही. दैट इज प्राइमरली व्हाट यू विल हैव टू रिवाइज एट दिस स्टेज. क्वेश्चन एंड आंसर आपने एक बार आपकी कॉपी और बुक पूरी रेफर कर ली है, साथ साथ में आप क्वेश्चन आंसर देखो. नॉर्मली आपको क्वेश्चन आंसर्स किस तरह से मिलेंगे? एक होगा न्यूमेरिकल कैलकुलेटर लगेगा, एक नॉन न्यूमेरिकल दिमाग लगेगा पर कैलकुलेटर नहीं, एक होगा थ्योरी जिसमें आपको रट्टा मारना है. थ्योरी वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप डेफिनेटली आते हैं, जैसे कि कोई स्टैंडर्ड में पूछ लिया भाई ये बताइए कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा, या लेट्स से फॉर एग्जांपल ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है या नहीं, या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है या नहीं है. दीज आर क्लासिफाइड एज नॉन न्यूमेरिकल एंड नॉट थ्योरी. What you can do is at the last day, if you're comfortable, you've practiced a lot. I don't think you have to practice anything as such per se. There, you just have to kind of audit. Except अगर आप consolidation, business combination, financial instrument में मे भी एक एक क्वेश्चन जो काफी कुछ चीजें कवर करता है करना चाहते हो आपका हाथ सेट करने के लिए, अगर आपने FR बहुत पहले रिवाइज किया था. I would strongly suggest कि आप एटलीस्ट सुपर 100 और 400 इसमें क्वेश्चन स्टडी मटेरियल या ICI के मटेरियल बेस्ड ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है. वेदर नॉट यू स्टडीड FR फ्रॉम मी और नॉट, स्ट्रांगली सजेस्ट अगर टाइम पूरा है तो 400 नहीं तो 100 क्वेश्चंस एक बार डेफिनेटली रिव्यू कर लें. और इसके साथ में ही इसका एक वीडियो भी है जिसको आप देख के यू कैन क्विकली काइंड ऑफ रिवाइज. इसमें फर्स्ट 50 जो टिपिकल चैप्टर्स आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हैं वो डिस्कस भी किए गए बहुत ही फटाफट तरीके से, आप उसको रेफर कर सकते हैं. जब भी आप ये सब पढ़ाई करेंगे तो लास्ट डे रिवीजन के लिए क्वेश्चंस मार्क करते जाना, कोई भी एक ऐसा सिंबल लगा के जो आपने पहले कभी यूज नहीं किया, लाइक अ स्माइली और समथिंग. एंड आखिरी एग्जाम से एक दिन पहले वो क्वेश्चंस एटलीस्ट नजरों से घुमा लेना कि सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे रहेगा, आप फटाक से सॉल्व कर पाओगे. कम से कम पिछली 3 RTP MTP पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कवर कर लेना. MTP सेवर साइड में, हालांकि उसके तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते कम है. मेरी तरफ से बोनस टिप क्या है, रिवीजन वीडियो आप देख सकते हो आखिरी 5-7 दिनों में. अगर आपके आइडेंटिफाइड है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने से पहले क्विकली एक बार कुछ रिवीजन वीडियो देख लिया. मैंने सारे अपने रिवीजन वीडियोस में चैप्टरिंग करा दिया, यानी कि आई हैव पुट इन टाइम स्टैम्प्स फॉर डिफरेंट टॉपिक्स. तो यू वांट टू जस्ट यू हैव अ कंफ्यूजन वन ऑफ द टॉपिक, गो देयर, रेफर टू दैट टाइम स्टैम्प एंड यू कैन सिंपली रिवाइज इट. I have in the link also given you the playlist for all the FR revision lectures. You can follow that as well. It will help you to serve easily. एग्जाम से एक दिन पहले पूरा कोर्स रिव्यू करने की कोशिश करना, सारे पन्ने पलटाओ, कुछ भी छोड़ के मत जाना. ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आपको. और इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा एक दिन पहले. एग्जाम हॉल में जाने के बाद रीडिंग टाइम, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन यू कैन डू द बेस्ट ड्यूरिंग योर रीडिंग टाइम. डू नॉट फोकस ऑन क्या मुझे नहीं आता है, फोकस ऑन क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ. ये मत देखिए मोहल्ले में मैं किन किन को नहीं जानता हूँ, ये देखिए कि ओ एक भी मेरे पहचान वाली मिल गई तो आई एम नाउ फीलिंग वेरी कंफर्टेबल बिकॉज आई विल बी एबल टू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विथ हर एंड देन धीरे धीरे उसके साथ मैं कईयों के साथ धीरे धीरे समय बना सकता हूँ. हो सकता है कि जिसको मैं सबसे बेहतर जानता था उससे ज्यादा भी किसी और को जानने लग जाऊँ. कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो हो सकता है कुछ लोगों से जिनसे मैं बात करने को कतरा रहा था, विद दैट कॉन्फिडेंस आई मे हैंडल देम वेरी वेल. दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच अप्लाइज टू द एग्जाम हॉल. डू नॉट फोकस ऑन द वंस व्हिच यू डोंट नो, इवन द वंस व्हिच आर डिफिकल्ट और यू डोंट लाइक. वैसे चैप्टर के क्वेश्चंस आ गए, पहला क्वेश्चन एकदम आपको सरप्राइजिंगली आपके तोत्ते उड़ा दिए, पसीने निकाल दिए, तो आपको पसीने निकलते हुए दूसरों के देखना और मुझे बोलना आई न्यू इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू डू दैट. आई रियली डोंट वरी अबाउट इट. डोंट वरी, आई जस्ट कीप इट फॉर द एंड. आई सॉल्व द अदर पेपर्स बिकॉज व्हाट मैटर्स इज मार्क्स. व्हाट मैटर्स इज नॉट कि डिफिकल्ट क्वेश्चन में कितने मार्क्स है और इजी में कितने आए. So quality of marks are not important, at least in the current scenario of our paper. What is important is the marks, not quality of marks, minded. So reading time में just identify one which question you have to do first, and if possible identify the question which you won't do and just kind of remember that you have stricken it off. इसको नहीं करना है. ये 2 डिसीजन भी ले लिया रिवीजन टाइम में तो काम बहुत बढ़िया हो गया. दूसरे क्वेश्चन का सॉल्व मत सोचना मत, अगर पढ़ते से लग रहा है डिफिकल्ट है कैसे करूंगा, जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, आगे बढ़ते जाओ. चलिए, चलती का नाम गाड़ी है, वही एग्जाम में भी फॉलो करेगा. डेकोरेशन पे, सुंदरीकरण पे बहुत ज़्यादा समय मत देना. सुंदरता के मार्क्स नहीं होते. सुंदरता का मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन करना है. कहीं पे भी फाइनल कंक्लूजन जो क्वेश्चन में मांगा है वो देना है. इससे अलावा प्रेजेंटेशन का और कोई मायना नहीं है. साफ सुथरा टीरेंट आईडी जस्ट टू हैव दैट
बेनिफिट ऑफ डाउट अगर आपको लेना है कि भाई कभी लग रहा है उसको 3 2 या 4 पर अच्छा प्रेजेंटेशन है तो 4 दे देगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, साफ सुथरा काम करना है। अदरवाइज उससे ज़्यादा बहुत समय मत देना, सीधी सीधी लाइन खींचना, ये वो फॉर्मेट वॉर्मेट बनाने में समय ज़ाया ज़रा भी मत करना। कम से कम 5 मिनट रिव्यू के लिए छोड़ना, यानी आपके लिए 175 मार्क्स इज द ओनली टाइम व्हाट यू हैव टू सॉल्व द पेपर। 5 मिनट यू शुड रिव्यू। आई कैन गारंटी यू लिख के दैट अगर आपने 5 मिनट रिव्यू के लिए दिए, हर पेपर में आपके कम से कम 1 से लेके 5 मार्क बढ़ेंगे सिर्फ इस रिव्यू के कारण। तो आप हमेशा ये टाइम छोड़ें, हो सकता है 5 की जगह 2 मिनट 3 मिनट, बट कुछ टाइम बचना चाहिए ही चाहिए। फॉर श्योर यू विल हैव टू स्नैच दैट टाइम। एक बार रिव्यू करना, आपको कई जगह खाली पेजेस, कई ऐसी जगह दिखेगी जहाँ पे आपको लगेगा कि आपने कंक्लूजन नहीं लिखा, कैलकुलेशन आधा करके छोड़ दिया, इक्वल टू लिख के आगे आंसर लिखना भूल गए, ये सब चीज़ आपके मार्क्स कटवा देती। ये सोच रहे थे आपकी मैंने सब सही किया, बट वैसा नहीं था। तो यू डू दीज पर्टिकुलर थिंग्स एंड देन वहां पे फिर आप कॉस्मेटिक और फिनिशिंग एज एन अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट चीज, ये वो सब आप कर सकते हो, खाली पेजों को कैंसिल कर सकते हो। मेरी टिप्स क्या होगी पेपर सॉल्व करते समय? स्पीड स्पीड और स्पीड। आपका टारगेट क्लियर कट होना चाहिए कि भाई आई हैव 175 मिनट्स फॉर 100 मार्क्स, सो आई हैव बेसिकली 1.75 मिनट पर मार्क। यू हैव टू कीप दैट लॉजिक। आई एम नॉट सेइंग शुरू में और आखिरी में स्पीड एक जैसी होती है। फर्स्ट आवर कंपैरेटिवली थोड़ा लोअर साइड में जाएगा, सेकंड आवर हैज टू बी ऑन द पीक। इफ दैट हैपेंस देन यू विल रियली बी कंफर्टेबली एबल टू डू द पेपर वेरी वेल। एवरी मार्क काउंट्स, जस्ट रिमेंबर दैट। What happens the night before the exams? Nightmares. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, you just have to role play। नींद नहीं भी आ रही है तो ये सोचो क्या क्या हो सकता है। डिफिकल्ट आया पेपर तो क्या होएगा, ईजी आया तो क्या होएगा, लेंदी आया तो क्या होगा, मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं वो उनमें से अगर कोई क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा, सब कुछ मुझे आता है तो क्या होगा। ऐसी 5-6 सिचुएशंस को रोल प्ले करके सबके पॉसिबल आउटकम्स निकाल के दिमाग में फिक्स कर देना, सो दैट देयर आर नो surprises which you have to decide at that moment. You have been so accustomed that आपका एक natural instinct होगा कि आपको रियल टाइम में बता देगा कि पेपर कैसे सॉल्व करना है। इन सब के अलावा I'll be starting some personal Q&A sessions every day Telegram पे। शाम को I'll share the time in the Telegram channel. I'll be there available live doing a voice chat with you guys. आपकी कोई भी query, कुछ भी मुद्दे हैं तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। You don't want to attend the whole session तो आप उस समय सिर्फ अपनी query डाल दीजिए। उस समय जितनी भी query आएगी मैं ऑडियो में उसकी आंसर देके उसको पुट अप कर दूंगा। आप बाद में आपकी सहूलियत के अनुसार उसको देख सकते हैं। I think this would help you to kind of strategize well for your FR paper. Otherwise अपनी कड़ी मेहनत है दोस्तों, और ये strategy है तो थोड़े बहुत मार्क्स और बढ़ा देगी। Strategy can plus give you a extra 10-20% over your preparation, otherwise foundation of your preparation। इसी के साथ दोस्तों अल्लाह बोलिए, एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया करिए, आपके लिए जॉबों की बौछार लगा देंगे। ये समय ऐसा है दोस्तों कि आपने अभी सीए क्लियर कर लिया तो आप ये समझ लीजिए 3-4 ऑफर आपकी जेब में होना कोई बड़ी बात नहीं है। 4 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स भी 10 लाख के ऑफर ज्वाइन करने से पहले सोच रहे हैं करूं या नहीं करूं। नॉट एवरीबडी बट मेनी ऑफ देम यस। इसका मतलब 2 अटेम्प्ट्स और सिर्फ पैसे से कंपैरिजन नहीं होता है, बट आई एम सेइंग जॉब मार्केट इज वेरी वेरी एक्सीलेंट फॉर यू। अगले 15 दिन 10 दिन जितना भी समय अब आपके पास है इस वीडियो को देखने के बाद, जोर लगा दो दोस्तों कुछ इस कदर का कि आपको लगे कि यार जितनी गलतियां मैंने करी थी, ये मत सोचो यार ये होता तो क्या होता, ये सोचो ऐसा कर दिया मैंने, इससे मजा आ गया, सारा का सारा तख्ता मैंने अपने फेवर में पलट दिया। विद दोस विशेस ऑल द बेस्ट। ऑडिट का सेपरेट स्ट्रैटेजी वीडियो इसी तरह का है, यू कैन रेफर दैट एडिशनली इफ यू वांट। थैंक यू।